Okay, good morning everyone. So today we are starting with the class Reptilia. Uh, before I talk about Reptilia, let me just give you a brief introduction. So जैसे जैसे एनिमल्स पानी में होते गए, वाटर में डेवलप होते गए, धीरे धीरे वो अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑन द लैंड, लाइक टुवर्ड्स द लैंड की तरफ आने लगे. The Pisces could not do that. They needed a special type of their, let's say, body parts जो उन्हें सर्वाइव करने में, लैंड में सर्वाइव करने में हेल्प करते. फिर एम्फीबियंस कुड मेड दैट पॉसिबल. एम्फीबियंस लाइक वो पॉसिबल हो पाए उनके कि दे कुड सर्वाइव ऑन लैंड विद द रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन्स, एरियल रेस्पिरेशन भी कर पाए. बट फॉर द रिप्रोडक्शन दे हैड टू गो बैक टू द वाटर. Okay, for the reproduction, for laying eggs, they had to go back to the water because उनके eggs का जो shell होता था, एक्स का जो शेल था वो इतना हार्ड नहीं था और इतना प्रोटेक्ट, मतलब कि शेल जो था उनका प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, डिहाइड्रेशन हुआ था. मतलब कि देवर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से क्या हुआ कि मतलब उनका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब कि दे कुड नॉट लाइक ले एग्स ऑन द सरफेस पे, मतलब eggs lay नहीं कर पाए. So they had to go back to the water for reproduction. Okay, now, so the class Reptilia, these were the first, these were the first, these were the first animals. Okay, I would say animals. These were the first animals जो ज्यादा evolve हो गए and they started moving towards the terrestrial. So we call them first true terrestrial animals with creeping. तो ये रेंगते हुए, ये जब वाटर से सरफेस की तरफ आए तो देवर क्रॉलिंग. ओके, देवर क्रॉलिंग, क्रॉल करते हुए आए. जब ये क्रॉल करते हुए आए, या तक कि मैं बोला कि ये मूव तो किए फ्रॉम वाटर टू सरफेस. दे मूव्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड, बट दे मूव्ड बाय क्रॉलिंग. क्रॉल करते करते मूव किए. तो याद रखिएगा, ये वो एनिमल्स हैं जो क्रॉल करते हैं. ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है रेप्टिलिया. ग्रीक में रेप्ट का मतलब होता है क्रॉल. ओके, ग्रीक में रेप्ट मीन्स होता है क्रॉल. तो क्रॉल करते हुए एनिमल्स आए, इन्हें हम रेप्टिलिया कहते हैं. इनमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, टर्टल है, snakes हैं, even the giant dinosaurs, like they were also considered to be reptilia, like the chameleon, chameleon ये रहा आपका, और the crocodiles. Okay, so today we are going to learn more about reptilias. Okay, reptiles we can learn because they crawl. Rept comes from crawl, so they came from water to the surface, like crawling they came. Okay, so they are called to be this. Now next, reptiles were the first terrestrial vertebrates. Just remember, they are the true terrestrial vertebrates came on the land. Okay, they are the true. Now they are the cold. Before, let's talk about their body structure as well. Okay, so इनके they have the well developed limbs for movement. मतलब कि जो इनके आर्म्स, फ्रंट आर्म्स हो गए और बैक आर्म्स हो गए, या फिर यू कैन कॉल देम लेग्स. Okay, so they have the well developed limbs for the movement. They have the well developed limbs for the movement. और इनके they in their limbs, in their digits, or you can say fingers. Okay, if you remember, fingers को हमने कहा था digits. We called that digits. तो digits has claws in them. Claws होते हैं, nails होते हैं. मतलब क्या? Nails होते हैं. That the amphibians did not have. तो amphibians में वो चीज नहीं थी जो इनके digits में होते हैं. Those are, that is, इनमें क्या होता है, क्लॉज होते हैं. ठीक है, नेल्स होते हैं, मतलब कि पंजे टाइप के समझ लीजिए, नेल्स होते हैं. ओके, these are the true terrestrial vertebrate animals with creeping movement. Very important point here is creeping movement. Okay, just remember creeping movement. Now these are the cold blooded animals. These are the cold blooded animals, और इन्हें कहते हैं poikilotherms animals. मतलब कि इनको जब ये सरफेस में आए तो इनको they need to survive on land from हीट से सरवाइव करना था और एब्रेजन से सरवाइव करना था. तो हीट के लिए इनकी बॉडी में आ गया स्केल. ओके, स्केल से इनकी जो थिक स्किन थी, उसकी स्केल की वजह से इनको एब्रेजन से बचने में मिल गया आसानी. एब्रेजन इज इन हिंदी यू कैन कॉल इट खरोच. खरोच लगती है ना, खरोच, एब्रेजन होना. जैसे आप मेटल का एब्रेजन रब कर दीजिए मेटल को, तो एब्रेजन हो रहा है, राइट. उसका क्षरण कम हो, मतलब उसका
कह सकते हो उसमें थिनिंग हो रही है, तो खरोच लगना इज लाइक योर एब्रेजन। ओके, तो स्केल्स हैं इनकी बॉडी में, क्या है, स्केल्स आर प्रेजेंट, जो कि आपके एम्फीबियंस में नहीं थे, पूरी तरीके से नहीं थे, एक्सेप्ट द पाइसेस के जिनमें बोनी वाले थे उनमें थे, ठीक है। तो इनमें क्या है, स्केल्स आर प्रेजेंट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सिंस दे मूव, सिंस दे क्रीप ऑन लैंड, ये अपनी पूरी बॉडी को क्रीप करते हैं, और ये क्रीप किस वजह से कर पाते हैं, दे क्रीप बिकॉज ऑफ देयर स्टमक, अपने स्टमक की हेल्प की वजह से दे क्रीप, लेट मी राइट दैट हियर, दे क्रीप ऑन देयर स्टमक, स्टमक के ऊपर ये क्रीप करते हैं, ओके, स्टमक के ऊपर ये क्रीप करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सो दे कैन नॉट लिफ्ट देयर बॉडी, दे कैन नॉट लिफ्ट देयर बॉडी, ओके, दे कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, मतलब उनकी बॉडी ऊपर नहीं उठ सकती है, बिकॉज दे क्रीप ऑन लैंड, ओके, दे कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, जस्ट रिमेंबर, स्टमक के बल पे, पेट के बल पे ये क्रॉल करते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी लिफ्ट नहीं की जा सकती, लिफ्टेड अप नहीं हो सकती। तो याद रखिए, स्केल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, स्केल प्रोटेक्ट्स द रेप्टाइल्स फ्रॉम सनरेज एंड एब्रेशन, तो स्केल इनको एब्रेशन और सनरेज दोनों से प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए थोड़ा सा सर्वाइव कर पाए। बट दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी सो दे कैन नॉट सर्वाइव, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, मतलब कि अगर बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा इनकी बॉडी, अगर बाहर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, तो इनका बॉडी का भी टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ हीट, एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, इन एक्सट्रीम हीट एंड इन एक्सट्रीम कोल्ड दे कैन नॉट सर्वाइव, इसीलिए आपने कई बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, स्नेक्स को देखा होगा, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं दिखाई पड़ते, ना ही बहुत ज्यादा ठंड में दिखाई पड़ते, दे यू कैन सी देम यूजुअली इन रेनी सीजन, दैट इज द रीजन, रेनी सीजन में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इन रेनी सीजन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, ओके, सो they are cold blooded animals, they creep on land on their stomach, so they cannot be lifted up, is that clear for everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं, let's know more points about them. Okay, so one more point is there, their skin is dry and scaly, we just understood, they can creep on land, they are cold blooded, neck is present between head and trunk, for example आप सपोज डायनासोर का ही ले लीजिए, या फिर यहाँ पे देख कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, क्रोकोडाइल का ले लीजिए, दिस इज हेड पार्ट, पीछे का पार्ट हो जाएगा ट्रंक, तो बीच में इनका नेक प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दे हैव द नेक, जो कि आपका एम्फीबियंस में नहीं होता, एम्फीबियंस में आपका क्या था, पूरा का पूरा बॉडी था, एक स्ट्रक्चर था हेड और ट्रंक का, तो नेक इतना प्रेजेंट नहीं था, तो दे हैव द नेक प्रेजेंट इन देम। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इनकी बॉडी में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ओके, इनकी बॉडी में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। डिगेट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, मतलब कि फिंगर्स में क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। नॉट ऑल द रेप्टाइल्स हैव द डिगेट्स, लाइक स्नेक्स नो डिगेट्स, ओके, नो डिगेट्स, दे आर विदाउट लिम्स, विदाउट लिम्स, इनमें कोई लिम्ब नहीं होते, मतलब कोई लेग्स या फिर इनमें कोई लेग्स या फिर मतलब आर्म्स नहीं होते, विदाउट लिम्स हैं ये, ठीक है, दे आर विदाउट लिम्स, सो सब में लिम्ब नहीं होगा, बट मोस्टली दे डिगेट्स आर, अगर इनके जिनमें डिगेट्स है उनमें क्लॉज होते हैं, मतलब नेल्स पाए जाते हैं, ओके। एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएंगे, आपका स्नेक्स हो गया, टर्टल हो गया, टॉर्टॉइस बोल सकते हो, एक्सटिंक्टेड एनिमल्स भी इंक्लूडेड है, लिजर्ड, कैमिलियन है, लिजर्ड है, यहाँ पे लिजर्ड, फ्लाइंग लिजर्ड है, एंड क्रोकोडाइल, सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, ओके, क्लास रेप्टिलिया। So here we complete class reptilia. I can take the doubts now and I can summarize that as well. Another important point here is that in some reptiles, the skin is periodically slawed. What does it mean? I'll tell you that. Periodically slawed off in pieces. Off in pieces. Okay? Pieces. और whole. और या फिर पूरी तरीके से, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा गांव में सांप का जो स्नेक होता है, रेप्टाइल है,
स्नेक का केंचुई बाहर निकलता है, उसकी स्किन पूरी बाहर आ जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन सम ऑफ द रेप्टाइल्स। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी बॉडी क्रॉल करने की वजह से क्या होता है, मतलब कि हीट और बहुत ज्यादा मतलब की वजह से दे हैव टू अडाप्ट टू द न्यू स्किन, उनकी बॉडी रिलीज कर देती है स्किन को, स्लॉट ऑफ कर देती है, जिससे वो ज्यादा एब्रेजन वगैरह से जो उनकी बॉडी में एब्रेजन आया, थोड़ा बहुत भी जो आया है, वो उनको क्या हो सके, वो निकल सके। आपको एक और चीज बताऊं, जो आपका लिजर्ड होता है, कैमिलियन होता है, जिसको आप कुछ कैमिलियन होते हैं जितने भी, ये हवा की तरफ मॉर्निंग में उठ के हवा, मतलब हवा कहता हूं, सन की तरफ देखते हैं। ओके, सन की तरफ ऊपर ऐसे करते हैं, सन बाथिंग टाइप से करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज देयर बॉडी गेट्स कोल्ड इन द नाइट, सो दे कैन नॉट लाइक मूवमेंट इतना नहीं हो पाता बॉडी में, इसलिए पहले अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, थोड़ा सा वार्म करते हैं, देन दे स्टार्ट हैविंग द मूवमेंट इन देयर बॉडी। ओके, very important. Another taboo I'm going to say here, that is, सभी ने सुना होगा, everyone must have heard that snakes take milk. आप गांव में पूजा पाठ मानते हैं, स्नेक्स की पूजा करते हैं, राइट, उनको हम मिल्क देते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्नेक कभी मिल्क नहीं पीता है। स्नेक जो मिल्क है वो मैमिलिया किंगडम से है, और स्नेक इतना डेवलप हो ही नहीं पाया है कि वो स्नेक को डाइजेस्ट कर पाए, स्नेक मिल्क को डाइजेस्ट कर पाए या फिर पी पाए। ठीक है, सो स्नेक जो टैबू है, एक फॉल्स बिलीफ है कि स्नेक दूध पीते हैं, वो कभी मिल्क नहीं पीते हैं। स्नेक्स, लेट मी राइट दैट हियर, स्नेक्स डू नॉट टेक मिल्क। ओके, मिल्क नहीं पीते हैं स्नेक्स, ये टैबू है, स्नेक्स कभी मिल्क नहीं पीते हैं। दे कैन नॉट ऑल्सो, वो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, उनकी बॉडी रेप्टिलिया फैमिली से, ना कि मैमिलिया, वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे, उतने डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी बॉडी में वो मतलब कि डाइजेशन सिस्टम है ही नहीं जो उसको डाइजेस्ट कर पाए उस चीज को। दे नेवर टेक मिल्क हियर। यस गाइस, नाउ आई विल टेक द डाउट्स।